So good evening everyone. So now we should start the foundation batch of mathematics. So let me tell you that this is the last lecture of the foundation batch on this channel. तो चिंता मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद फाउंडेशन बैच का क्लासेस लगेंगे नहीं, फाउंडेशन बैच के क्लासेस लगेंगे इसके बाद भी, बट वो आपके अलग चैनल पे लगेंगी। वो नया चैनल जो भी स्टार्ट होगा, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द classes of the foundation batch will run on the separate channel, so that will not be run on the Creatrix channel. Okay, so this is the information which I want to give you. So those who are coming regularly, those who are following these sessions very religiously, they for them this information is very crucial, that you have to now onwards attend the classes of the foundation batch onto the next channel or the channel. So the link of the channel will also be given in the comment section. Okay, so those who are coming for the first time, they have to like this video, subscribe this channel and share this video so that more and more people can join. If more number of people will come, obviously we will be motivated to work hard, we will be motivated to give you more and more content which will be helping you in order to achieve your dreams day and night. Okay, now let us try to first of all give you the idea that अभी मैंने just थोड़ी देर पहले एक सेशन किया था. So if you are from an ECE branch, if your branch is ECE, then you should watch that video particularly. If your branch is electrical or any other branch, then maybe you should wait for the detailed video so that you can get the detailed video like I did in the previous video. Okay, fine, very good. Okay, so people are coming. Yes, okay. So someone is saying already subscribed, sir. Thank you so much here. Everyone has to subscribe the channel, everyone has to be present on that channel also. Okay, only subscribing will not do the sufficient thing. आपको वहाँ पे present भी रहना है, क्योंकि मंडे से अंकित सर अपनी फिजिक्स वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन आपके अंकित सर फिजिक्स की क्लास आगे बढ़ाएंगे. बाकी के जो 3 दिन बच रहे हैं वहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स को आगे लेके जाएंगे. तो आज की क्लास मैथमेटिक्स की totally problem oriented है. We are not going to study the theory because the domain thing we have already discussed. So we already covered the domain in yesterday's class. So in today's class we are going to only solve the problems of the domain. Very interesting problem, you will really enjoy these sessions. Okay, fine. So before that, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I have secured All India rank 25 in ESE 2015. Right now I am an academy educator, so I teach on an academy right now. Okay, चलो देखते हैं next. So first of all, one more important information, that one new batch is coming for you from 15th of August. So from 15th of August, a new batch is coming for EC, and from 10th of August, new batch is coming for electrical. So those who haven't subscribed yet, those who haven't come on the Unacademy Plus yet, this is the last month for you. If you are missing this chance, maybe you are missing your complete year. उसके बाद सीधे 1 साल बाद ही तैयारी कर पाओगे, फिर तैयारी करने का मौका मिलेगा नहीं. करोगे भी तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर पाओगे, बट स्टिल यू हैव द चांस बिकॉज वी आर गिविंग यू द चांस टू प्रूव योर सेल्फ वंस अगेन. ओके, सो ऑन Unacademy Plus you will have daily live classes, crash courses, rank improvement batches, the subjects that will run in Hindi and English both. You will be having doubt clearing sessions, and weekly test will also be going on that. Okay, fine. So let me give you yesterday's session. Okay, this is the batch which we are going to start. It is starting from 15th of August. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, then you should not wait more. What you can do, you can immediately, if you have any inquiry, okay, you can immediately call on this number. So this number will give you every information that you need regarding this batch. और अगर आपने मन बना लिया है, to do not forget to use this coupon code. Okay, this is the coupon code which you should use for taking the subscription. So this is very small announcement, very small information. After that we will start today's session. So how many of you want that we should start today's session? Yes. So should we start today's session? Okay, so let me very quickly give you the idea behind the sessions that we did. कल की क्लास में हम लोग फंक्शन और रेंज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. फंक्शन रेंज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है. So all these 3 things, hopefully everyone has clear idea. What is the meaning of domain? What is the meaning of range? What is the meaning of codomain? What is the function? Function generally performs the mapping between domain and codomain, and that functional value should always be single valued, which means the mapping should always be single valued. या जितने भी elements आपके domain में हैं, सबसे एक single arrow बाहर निकलता हुआ दिखना चाहिए. Okay, so this is the revision class. Then identity function, I have given you this identify function using mapping test. So for mapping test you only have to observe the arrows.
अगर एक एरो निकल रहा है तो फंक्शन हो जाएगा। फिर मैंने एक और टेस्ट दिया था आपको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब अगर किसी ग्राफ को एक बार वर्टिकली सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सो दैट विल ऑल्सो क्वालिफाई एज अ फंक्शन, अदरवाइज इट विल बिकम रिलेशन। ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डोमेन, and in domain we discussed about what? One rational function, square root function. Do you remember all these things? Okay, so do you remember all these things? Yes, I hope everyone is remembering all these things. देखो जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन है चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछने से हो सकता है मैं देख नहीं पाऊँ यार, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना, दिस इज द डेडिकेटेड नंबर, okay, to resolve your queries. So you can call on this number and you can get your queries resolved. Okay, तो चिंता मत करो, फ़ोन कर लो इस नंबर पे, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कुछ बताएगा नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फाइन, ओके, चलिए, तो ये नंबर मैंने दे दिया, यहीं से आपको जो पूछना है पूछिए। यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज रैशनल फंक्शन? सो वी डिस्कस दिस एग्जांपल f(x) = 1/x एंड डोमेन वाज r-0. दिस आई थिंक ऑल्सो एवरीवन रिमेंबर्स। देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई होप, एंड आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन वाज आल्सो सॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ रहा था यार, अगर आपको याद हो तो, इस क्वेश्चन का व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डू यू रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, the answer of this question was coming out to be r minus, and if you remember it was coming out to be 0,1. okay, you cannot cancel a common factor from denominator and numerator until and unless you don't know the value of this thing. If the value becomes 0, maybe you cannot cancel the common factors of the denominator and numerator. So hopefully everyone remembers it. Now let us move on to the next question. So this question we have to do, I think ये question भी कल हम लोगों ने कर लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। Yes, this question was also done in yesterday's class, so it is also done. Now let us try to attempt this question. So from this question onwards we can proceed solving. So from this question onwards we can proceed solving the question. So again I will give you the time of 1 minute. Okay, yes, again I will give you the time of 1 minute. You have the time of 1 minute to attempt the question. In today's class we are going to solve very important questions, some questions. Okay, after the basic understanding of domain and range we will jump up onto the concepts of the limit, and after that we will jump up onto the differentiation. तो आपको समझ आएगा why there is a need of the concept of domain and range. Even if you do the differentiation, even if you perform the maximum minima, even if you calculate the limits, even you calculate the integration, even you solve the questions of the integration, you will always need the help of this domain and range concept. Everywhere the concept of domain and range will be used very extensively. That is why I am teaching you this thing. Okay, so tell me the answer. 4 options are given to you, A, B, C, D. Which of these following options can be the best possible answer of this question? You have 1 minute. Okay, so right now, from now onwards, you have 1 minute. You can attempt this question. Okay, I'm counting every second so that I can wait for your answers, and I'm expecting absolutely correct answer from everyone. So I have given you the idea how to solve the questions of the under root and how to solve the questions of the rationality. अंडर रूट का क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है, रेशनैलिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू द क्लियर कट आइडिया. यस, दिस इज फॉर ऑल ब्रांचेस, this is for all branches, even if you are from electrical, EC, mechanical, civil, chemical, computer science, whatever is your branch. If you think that you need basics of the mathematics which will help you in the engineering, this is the channel for you, this is the video for you, because we are giving you the every possible basic that is needed to jump onto the next level on the technical subjects. Okay, any answers from anyone? I think अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया. चलो मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है. I think you are calculating, you are on the way of your answers. So let me give you the idea how to calculate the answer of this question. यहाँ पे देखो दो आपको अंडर रूट्स दे रखे हैं, तो एक बात तो पक्की हो गई कि इसके अंदर जो 2x + 3 लिखा हुआ है, this 2x + 3 should also be greater than 0. So this 2x + 3 has to be greater than or equal to 0. Or equal to 0 will do the things. Okay, so this x will become greater than or equal to -3/2. I think this should be the first inequality in which we are interested in. What about this? So if you calculate this thing, it will become 3 minus x square upon x has to be greater than or equal to 0. So obviously this will become what? This will become some sort of your wavy curve method. Okay, so I will first of all identify the function. This is the function which I am interested in, and if this is the function, so what you can write there, you can write this thing as 3 minus x square upon x, or this can also be written as minus of x minus root 3, okay, x plus root 3 upon x. Now you can go on to the drawing the wavy curve. So once you draw the wavy curve, what you can have the idea of, you can have the idea that this particular thing will become minus root 3.
this particular thing becomes root 3. Okay, meanwhile there will be also some 0, so I am taking this 0. कहाँ पे closed, कहाँ पे open लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग close circle लगा देते हैं, यहाँ पे close लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, because you cannot include 0. Again you will start jumping on every value which is given there. अब jump करने के बाद आपको यहाँ से शुरुआत किससे करनी है ना, वो important है. आपने देखा यहाँ पे बाहर साइन कैसा था, नेगेटिव, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज सबकी पावर भी अगर आप देखेंगे तो एवरी पावर वाज ऑड इन नेचर. नाउ यू वांट दिस फंक्शन टू बी ग्रेटर देन 0. इफ यू वांट दिस फंक्शन टू बी ग्रेटर देन 0, so from there you get the limit as x belongs to minus infinity to minus root 3 union 0 to root 3. So I think this is the limit which we are getting. Are you getting the same answer? ये दोनों की इनइक्वालिटी से बिल्कुल सेम आंसर सबको मिल रहा है. यस, सो इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर देन व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2. सो इफ यू वांट टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2. देखो यहाँ पे ये वैल्यू बोल रहा है -3/2 से ज़्यादा होना चाहिए. -3/2 से ज़्यादा होने का मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.5. So one value is telling that it should be greater than -1.5. What is the value greater than -1.5? This will be the graph of -1.5. Okay, तो ये मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पे, जस्ट एक लाइन ही आपको बनानी रहती है. तो पहली वाली इनइक्वालिटी बोल रहा है कि -1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए. दूसरी बोल रहा है -∞ से -√3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -√3? इट इज़ -1.732. तो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है दैट यू शुड कमिंग टू बी फ्रॉम -∞ टू -√3. फिर उसके बाद वाली अगर वैल्यू आप देखेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल रही है 0 से √3. तो ये 0 वाली वैल्यू हो गई, यहाँ कहीं हो गई आपकी √3. तो 0 से √3 इनका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉमन रीजन आपको मिलेगा जो कि आपका होगा 0 से लेके √3 तक. तो 0 से लेके √3 तक अगर आप कॉमन रीजन अपना कैलकुलेट करें तो यू विल गेट दिस रीजन. ओके, दिस इज 0 to √3. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी करेक्ट? अगर आप इसका कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे सो ओनली ऑप्शन दैट इज मैचिंग इज x बिलोंग्स टू 0 to √3. करेक्ट? ओके. वेयर आर द फर्स्ट 3 लेक्चर्स? इसी चैनल पे पढ़े हैं, सेम चैनल पे पढ़ें. आप जाओ क्रिएट्रिक्स चैनल में, सर्च फॉर द फाउंडेशन बैच, एंड इन द फाउंडेशन बैच 2 सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स. तो मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स फॉलो करो. पहले के 3 लेक्चर्स यू विल गेट एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स. करेक्ट? यस. तो बहुत सारे लोगों ने बी ऑप्शन दिए, कुछ लोगों ने डी भी दिया था. डी कैसे आंसर दे रहे थे? डी तो इंटरसेक्शन का हिस्सा नहीं होगा ना. ये देखो इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया ना. एक है -∞ से -√3, दूसरा है 0 से √3. तो -∞ से -√3 यहाँ पे आ गया, 0 से √3 मैंने यहाँ पे बना दिया. एक और आपका है वो बोल रहा है -1.5 से ज़्यादा, उसको भी आप बना दो. इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको कितना दिख रहा है? इंटरसेक्शन आई थिंक सबको दिख रहा है कि 0 से √3 के बीच में आपको ले लेना चाहिए. यस और बी आ गया ना सबका? ठीक है. होपफुली एवरीवन अग्रीज विद द फैक्ट दैट द करेक्ट आंसर शुड बी बी. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर कंफर्टेबल, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको अभी तक सब समझ आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल सकते हैं. सिर्फ सवाल लगाना है, कुछ करना नहीं. कॉपी पेन लेके बैठो, सवाल लगाओ, उसको सॉल्व करो. आंसर सही आएगा या कभी गलत आएगा, गलत आएगा तो इंप्रूव करो, सही आएगा तो अगले सवाल का वेट करो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो चलते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question it is asking you what should be the domain of the following function. So the function is given something like this. Okay, this is the function which is given to you. Again I will give you the time of 2 minutes approximately. Here the meaning of the bracket Shubham I have already explained in the previous classes. Shubham Verma. Shubham आप क्या करो, आप इसके पहले की जो 3 क्लासेस हो रखी है ना, वो 3 क्लासेस जाके एक बार देखो वहाँ पे, और उन 3 क्लासेस में आप ये जाके देखो कि मैंने ब्रैकेट्स के बारे में क्या बताया, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कैसे समझाया. तो वो 3 क्लासेस आप देखोगे ना तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है? ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास 2 मिनट का टाइम है. 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इसका आंसर सही से निकाल के बताना है. कम से कम ट्राई ज़रूर करना है. कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए, ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन के आंसर आने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, धीरे 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 करके आपको एक लंबे समय में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपका इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो कई लोग देखो अचानक इंप्रूवमेंट की उम्मीद रखते हैं कि अचानक से इंप्रूवमेंट आ जाए. ऐसा नहीं होता है. ग्रेजुअली ग्रेजुअली करते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, करते 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 अपने आप एक लेवल बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है. ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन करिए. अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं होता है तो नॉट एन इशू, हम लोग डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट इज एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई. तो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए और एक बार मुझे बताइए. तो देखो चेंज इन नोटिफिकेशन जो आया है ना आपका ईसी वालों के लिए,
तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया अभी इसके पहले वाले सेशन में। तो अगर आप इसी ब्रांच के हैं तो देखिए, किसी और ब्रांच के हैं तो वेट करो बाकी ब्रांचेस के भी डिटेल्ड वीडियोस का, वो भी आई होप कल तक आ जानी चाहिए। और यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, रात में 11 बजे एक सेशन भी है ना, उस पर सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और उसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस आपको करके देंगे सिलेबस चेंज की। तो रात में 11 बजे ऑन द सेम चैनल। सो इफ़ यू बिलोंग टू द EC ब्रांच you should not wait, you should not be late for this session, ठीक है। तो 11 बजे ये सेशन है, इसके लिए लेट मत होना। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ओके, मैथ्स कब तक कंप्लीट करेंगे यार? यहाँ पे मैथ्स ना, ये बेसिक मैथ्स चल रहा है। कौन पूछा है? राजू। तो राजू यार ये बेसिक मैथ्स चल रहा है ना, तो बेसिक मैथ्स चलने का मतलब यहाँ पे आपके सिर्फ बेसिक्स कवर कराए जाएंगे। बाकी अगर आपको इंजीनियरिंग मैथ्स चाहिए ना, तो इसी चैनल पे पल्लव सर ने पूरा का पूरा मैथ्स कवर करा रखा है। तो आप जाओ क्रिएट्रिक्स चैनल पे और पल्लव सर का नाम सर्च करो, तो इंजीनियरिंग मैथ आपको पूरी मिल जाएगी, वो ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीट हो रखी है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में देखो, एक बात तो हमें समझ आ रही है कि अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसके अंदर वाली जो चीज़ लिखी हुई है, जो भी इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है, दैट शुड ऑलवेज बी व्हाट? दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो दैट थिंग शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। 0.2 x² plus 9x plus 5. Okay, this should always be greater than or equal to 125. I think this point is very clear to everyone कि अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो यार ओवरऑल आपको हमेशा कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो अगर ओवरऑल आपके पॉजिटिव चाहिए तो अब देखो दोनों तरफ पावर्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? क्या आप 1/2 को 1/5 लिख सकते हैं? यस, तो 1/2 को लिखा जा सकता है 1/5 और इसकी पावर हो जाएगी x² plus 9x plus 5। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, आप इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब, ठीक है। अब इसकी पावर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये 5 की पावर हो जाएगा -1 और माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, तो आपको यहाँ से मिला x² plus 9x plus 5 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 5 to the power 3। अब देखो क्या आपको लॉजिक समझ आ रहा है? यहाँ से कुछ लॉजिक आप समझ सकते हैं। ये देखो, अगर 5 की पावर कुछ यहाँ लिखी हुई है, 5 की पावर कुछ यहाँ लिखी हुई है, तो अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, इसका मतलब इसका पावर इसकी पावर से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द ओनली फैक्ट विच इज़ ट्रू हियर। तो अगर इस फैक्ट को मैं आगे लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा -x² - 9x - 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ या मैं ऐसा करता हूँ x² 9x plus 5 को उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा x² plus 9x plus 8 and it should be less than or equal to 0. And what is this? I think it is x plus 8, x plus 1 should be less than or equal to 0. और अगर आपका x plus 1, x plus 8 less than or equal to 0 है, तो आप क्या कर सकते हैं? You can always take this thing as this is -1 and this is -8. ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो? वापस से वेवी कर्व लगा दो, प्लस माइनस प्लस। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? आई थिंक द आंसर, अच्छा -8 मैंने उधर लिख दिया ना, इसको सही कर लो। तो क्या करते हैं, -8 यहाँ लिखो, -1, क्योंकि -1 बड़ा होगा ना, -8 छोटा होगा। सो विच इज़ द करेक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो कहीं पे भी उसने बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करके नहीं दिया। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, मुझे बताना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आप नोटिस करोगे ना, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द रेशनैलिटी एज वेल एज दिस क्वेश्चन गिव्स यू द आइडिया ऑफ द रेशनैलिटी एज वेल एज अंडर रूट। सो दिस फंक्शन गिव्स यू आइडिया ऑफ बोथ। ओके, ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कंबाइंस बोथ। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो मैंने ये इक्वल टू लगाया था, क्या ये इक्वल टू लगाना वैलिड होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यहाँ पे जो मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने क्या सोचा कि ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी है, अंडर रूट वाली क्वांटिटी हमेशा या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। तो हमारा थॉट बिल्कुल करेक्ट था। बट अगर हम ये भी नोटिस करते कि वो अंडर रूट आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो शायद हम ये चीज़ ज़रूर इसके साथ लगाते कि भले ही वो अंडर रूट है पर उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड, और अगर किसी भी वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो उस वैल्यू को कभी भी आप डोमेन का पार्ट नहीं लगा सकते। तो अगर आप आगे से कभी भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन देखें तो एक बात ज़रूर इंश्योर करना कि अंडर रूट अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आ रहा हो या कभी भी रेशनैलिटी में आ रहा हो तो वहाँ पे इक्वल टू 0 वाली पॉसिबिलिटी को हटाना मत भूलना। तो यहाँ पे आपने ये तो ले लिया, ये तो ठीक था। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता x² + 9x + 5 - 125, ओके,
अगर यही क्वेश्चन डिनोमिनेटर में की बजाय न्यूमरेटर में दिया होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिनोमिनेटर में दिया था तो हम ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू वाला पार्ट कभी भी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आपने इक्वालिटी इंश्योर करा दी तो आपने बहुत बड़ी गलती करा दी, क्योंकि आपने फंक्शन को अपने इन्फिनिटी जाने के लिए फोर्स कर दिया। अगर आपका फंक्शन इन्फिनिटी चला गया तो कहीं ना कहीं पे गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सर्कल्स कौन सा बनाओगे यार, हमेशा यहाँ पे आप हमेशा सर्कल्स बनाएंगे, ओपन सर्कल्स। ओके, तो यहाँ पे आप सर्कल्स बनाएंगे, ओपन सर्कल्स। सो होपफुली एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। समझ आया सबको? यस, ओके, है ना? हाँ, इक्वल टू नहीं होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस क्वेश्चन एंड द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज दैट योर अंडर रूट एंड रेशनैलिटी कॉम्बिनेशन शुड बी कंफर्टेबल विद यू। ठीक है, चलो तो मुझे बताना क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ना? डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था कि 0.2 आपने देखा, 125 देखा, थोड़ा सा आपको लॉजिक बिठाने थे। जैसे ही आप लॉजिक बिठाते इमीडिएटली ये क्वेश्चन क्रैक हो जाना था। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आई विल गिव यू द टाइम ऑफ 2 minutes, you again have the time of 2 minutes. Within 2 minutes you have to solve this question. So for every question I am giving you sufficient time. You have to put your pen on your paper. Even if the answer doesn't come, it is not going to make a difference. At least your brain will start working, at least your brain will start mapping these questions in your mind. जब जब आपके ये क्वेश्चंस आपके ब्रेन में मैप होने लगते हैं तो वहीं पे आपको बहुत अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे ये सारे के सारे क्वेश्चंस में अप्रोच क्या रखनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं वेट करता हूँ आपका और मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप मुझे बताइए। ठीक है, और 15 अगस्त से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यू बैच इज स्टार्टिंग फॉर ईसी। 10 तारीख से न्यू बैच इज स्टार्टिंग फॉर इलेक्ट्रिकल। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, दिस नंबर आई एम गिविंग एवरी टाइम। ठीक है, तो अगर आपको कोई जेनेरिक क्वेरीज है तो आप इस पर पूछिए, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो मैं तो यहाँ पे खड़ा ही हूँ, तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। कोई जेनेरिक आपको क्वेरीज है, इस नंबर पे फ़ोन लगा दो, पूछ लो जो भी आपको पूछना है। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द आंसर? मैथ फाउंडेशन बैच कितने दिन का कोर्स है? यार मैथ फाउंडेशन बैच में कितने दिन का नहीं है, इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे। जैसे कैलकुलस आपका कवर किया जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री विल बी कवर्ड, बेसिक ज्योमेट्री विल बी कवर्ड, बेसिक प्रोबेबिलिटीज विल बी कवर्ड। देन आफ्टर दैट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, तो इसमें कोई दिन का कोर्स नहीं है, आपको जस्ट फॉलो करते जाना है, धीरे धीरे करके आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको इसको एज अ एडेड कोर्स की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, ये कोई फाइनल वन स्टॉप कोर्स नहीं है, इसको पढ़ने से आपका कोई एग्जाम निकलेगा, बट बिना इसके पढ़े भी कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बड़े बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं। ए, किसी ने आंसर बताया ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ओके, ए। सो चेतन शर्मा इज सेइंग आंसर शुड बी ए एंड बाबू प्रसाद इज ऑल्सो सेइंग आंसर शुड बी ए। और किसी का आंसर यार, कोई और आंसर बताना पसंद करेगा? I think this is the last practice question of the domain. After that we will discuss about range. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको दो अंडर रूट दिख रहे होंगे, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो दोनों को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो किया जा सकता है, वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो आपका न्यूमरेटर में है। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9? अभी तक शायद आपको पता चल गया होगा दैट दिस विल बिकम एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और योर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 to infinity. So I think अब इसका वे भी करो, बनाने की ज़रूरत नहीं है। You can understand. Even if you want to make it, you can make. This will become your -3. Okay, this will become your 3, and you can jump on these circles. So this will become plus minus plus. And if you want to take this plus sign, you have to move from minus infinity to 3 or 3 to infinity. So this becomes your inequality of x square minus 9 greater than 0. Second inequality, if you notice, it becomes 4 minus under root of x square minus 9, and this should be greater than or equal to 0. इसको भी greater than or equal to 0 होना पड़ेगा, and if this thing wants to be greater than or equal to 0, which means your 4 should be greater than or equal to x square minus 9. अब देखो जरा, क्या कभी भी अंडर रूट की क्वांटिटी नेगेटिव आ सकती है क्या? बताइए, ये इनइक्वालिटी बन गई आपकी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 4। तो मुझे बताइए, क्या ये क्वांटिटी एज अ होल पॉजिटिव है या नहीं? टेल मी। सो एनी क्वांटिटी विद अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस 4 इज ऑल्सो पॉजिटिव।
So if you know the sign of both sides of the inequality, you can square it also. अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड का आप स्क्वायर भी कर सकते हो. तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 16, और इट विल बिकम x minus 5 x plus 5 less than or equal to 0. Okay, again you will draw the wavy curve. So in this wavy curve, what you can understand is that this is your minus 5, this is your plus 5, okay, and this will become plus minus plus. So your x belongs to minus 5 to 5, correct? तो ये दो conditions आपके पास आ गई, second condition and this becomes your first condition. So I hope everyone is understanding. तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, if you take the intersection of this one and this two, so what you are going to get, let me give you the idea of the intersection once again. अगर आपको idea of the intersection मिल गया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. तो ये देखो -5 से 5, एक आपको बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -3 तक जाने को, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 तक जाइए. दूसरा बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी जाने को, तो दूसरा आपको बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी जाने के लिए. तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना बचेगा. तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है दैट योर x शुड बिलोंग टू -5 to -3 यूनियन 3 to 5. अच्छा, यहाँ पे हम लोग चाहें तो ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं. -5 to -3 यूनियन 3 to 5. ठीक है, तो बताना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. प्लीज कवर द एंटायर. हाँ, यस वी विल कवर द एंटायर प्री रिक्विजिट, नो नीड टू वरी. नवनीत कृष्णन, ओके, so we will cover the entire prerequisite, you do not have to worry. That is why we are starting a new channel, so we are very much passionate about that and we ultimately believe in that channel. That is why we are separating that channel absolutely independently. Okay, so we know the shortcomings or the thing that a student need. If any student is in village or not in very good college, then what are the basics that he need? So we totally believe in this philosophy. That is why we are giving you the separate channel for this, so that every student or every engineer or every one of you should never say this statement that mera basic weak hai. So we do not want to hear that thing. So that is where we are working day and night. We are giving extra 1 hour, half an hour. अब ये देखो सारी के सारी स्लाइड्स बनती हैं, सारी की सारी PPT बनती है, सब कुछ बनता है, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है. तो सारी चीज़ों में रिसर्च करने में, बनाने में, एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड the shortcomings or the backlogs that everyone is having. So we want to give everyone the fair chance of playing, so that everyone can secure the good rank in spite of their background. ठीक है, ओके. y -5 to 5, यार ये लेस देन और इक्वल टू 0 है ना. If it is less than or equal to 0, then this will become from -5 to 5. ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिला. तो मुझे बताना ऑप्शन कौन सा मैच करेगा. Which of these following options should be matched? -5 to 5, -3 to 3, -5. None of these options are matching if you watch closely. But अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन आपको एक दे देता, एक सिंपल सा मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑप्शन दे देता, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता. ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? नो. बी नॉट. सी इट इज रॉन्ग. डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑल दीज ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर मान लो इसको सही करना होता, तो इसको सही करने के लिए आप क्या ऑप्शन बता सकते थे. यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन डाल देता, -5 से 5 में से, -5 में से 5 में से हमको सिर्फ -5 से 3 चाहिए और 3 से 3 चाहिए. तो अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन डाल देता, ध्यान से देखिए, ठीक होता है. चेक करो, अगर मैं -5 के 5 के इंटरवल में से ये -3 से 3 का इंटरवल हटा देता, तो सही आंसर आ जाता अपना. चेक करके बताइए. हाँ, वैसे तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, वैसे तो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैं एक नया ऑप्शन डालता, सपोज मैं इसमें एक नया ऑप्शन डालता और -5 के 5 विंडो में से -3 से 3 के विंडो वाले सिग्नल्स को निकाल देता, तो ये देखो, ये वाले ब्रैकेट का मतलब आपको पता है कि -3 से 3 तक के लेके सारे के सारे कंटिन्यूस सिग्नल्स को आपको कंसिडर करना है. तो -3 से 3 तक के अगर सारे कंटिन्यूस सिग्नल्स को आपको कंसिडर करना है, तो अब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. बट
in the given previous options, none of the options were correct absolutely, but in this case if you want to give it a chance then I would give this A option as chance if this thing would have been written there, है ना. तो शायद मिसप्रिंट हो गया होगा ऑप्शन में, शायद जो टाइप कर रहा होगा वो लिखना भूल गया होगा, पर मैंने करेक्ट कर दिया अपने एंड से. ठीक है, चलिए ओके. क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल चाहिए ना, ये देखो ना यहाँ पे आपने आंसर क्या लिखा, कहाँ गया आंसर, ये. तो आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, अगर आपको -5 से -3 वाली वैल्यू इंक्लूड करनी है, जरा देखो कौन पूछ रहा है, नवनीत कृष्ण. सो नवनीत ट्राई टू, मैं इसलिए पूछता हूँ कौन पूछ रहा है कि मैं देख लूँ कि हिंदी में समझाना है या इंग्लिश में. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग that their -3 is included, their 3 is included. If you want to include this 3 in your answer, then you cannot subtract this -3 from your answer. Okay, so that is why I have taken this open interval -3 to 3. This open interval -3 to 3 means you are not subtracting -3, you are not subtracting 3. So you are including your 3 and -3. Okay, now so this was it in the domain section. Okay, I will also give you a lot of questions to practice in the domain. So domain is not going to end here, rather it is the starting of the domain. जब तक आप mathematics पढ़ते रहेंगे, every time you will be having the need of calculating the domain and range. So this is some basic ideas of calculation of the domain. Now let us try to understand the range. What do you understand by the range? I have already told you, if you have some domain, then what the possible values that a function can take for that particular domain is called as the range. So let us try to understand what are the methods that we are having to calculate the range. So first method is that what you can do, you can calculate x in terms of y. So I have total 4 methods. So out of that I am giving you some standard methods. What is your first method? In the first method it is saying that you have to calculate x in terms of y. अगर आप ऐसा करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल योर फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज गिवन टू यू. इफ योर फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज गिवन टू यू, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट x इन टर्म्स ऑफ y. देन ऑब्वियसली यू विल गेट अ न्यू फंक्शन एज x इक्वल टू gy. हालांकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, बट उससे क्वेश्चन करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा ये अप्रोच क्या होना चाहिए. तो जस्ट मैंने एक ग्राफिकल आपके लिए इंटरफेस बनाया ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिले. तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, फिर आपको क्या करना है, g का डोमेन फाइंड आउट कर लो, है ना. तो g का डोमेन फाइंड आउट करने में तो आप पहले से ही कंफर्टेबल है. जो भी g का डोमेन होगा वही y का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा. चेक करके देख लो, आपने लिखा x इक्वल टू जी वाई. अब आपको y की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है. अच्छा मुझे ये बताना, ये बताइए ज़रा, अगर ये लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज? रेंज का मतलब क्या है, वैल्यूज टेकन बाय y. दिस इज ओनली रेंज. सो रेंज मीन्स वैल्यूज टेकन बाय y. यस और नो, है ना. तो जो भी y वैल्यूज ले रहा है वही तो आपका रेंज हो जाएगा यार. तो y जो वैल्यूज ले रहा है अगर वही आपका रेंज हो जाएगा, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये समझो, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे फंक्शन को ही चेंज कर दे रहे हैं. पहले आपका दिया था कि y इन टर्म्स ऑफ x, हमने x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y. फिर जो भी x इन टर्म्स ऑफ y वाला फंक्शन बन के आया उसका हम डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं. अल्टीमेटली मुझे y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मैं कैसे भी कैलकुलेट करूँ. चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. ये एक क्वेश्चन आपको दे रखा है. इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द following functions are given, you have to find the range of the following functions. Okay, तो ये एक फंक्शन दे रखा है, इसकी आपको रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. रेंज का मतलब all the possible values of the function for a given domain. तो for a given domain, if you want to calculate the range of the function, then that particular thing can be calculated by one of the possible methods as write y in terms of x. तो यहाँ पे देखना y क्या लिखा हुआ आपका, ध्यान दीजिए, 2 - x अपॉन x. एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता था कि पहले आप इसका डोमेन निकालिए, फिर डोमेन से जितने भी आपके आउटपुट पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे आउटपुट आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो भाई उस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते तो मैं पहला तरीका या कॉमन सेंस वाला तरीका अगर यहाँ पे यूज़ करता तो मुझे बताना इस सिग्नल का डोमेन कितना हो जाएगा. सो आई थिंक एवरीवन विल अग्री दैट योर डोमेन विल बिकम 2 - x बाई x. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ से एक x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0 और x की वैल्यू आपको एक मिल जाएगी 2. तो एक x की वैल्यू आपको मिली 0 और एक x की वैल्यू आपको मिल गई 2. यस और नो. उससे पहले मैंने इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लिया होगा. कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने की वजह से आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव. सो दिस विल बिकम माइनस प्लस माइनस. अगर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, सो इट इज टेलिंग दैट योर x शुड लाई बिटवीन व्हाट, योर x शुड बिलोंग टू 0 to 2. ठीक है, ऐसे ही कुछ बोल रहा है, चेक कर लो. ये देखो ना, इसको ऐसे ही तो लिखोगे इस फंक्शन को,
minus of x minus 2 upon x. Okay, so you have minus sign outside, so you will start from minus, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सबकी पावर 1 है. आई थिंक ये आप समझ पा रहे हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू ये बोल रहा है या तो आप 0 पुट कर सकते हैं या तो x की वैल्यू 2. तो जो x की रेंज यहाँ पे आपको मिल के आ रही है वो रेंज आपको यहाँ से दिख रही है. सब लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट कि जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है उसका जो डोमेन आना चाहिए उसमें x की वैल्यू आप 0 से 2 ले सकते हैं. मतलब x की वैल्यू आप 2 से ज़्यादा लोगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा और x की वैल्यू 0 से कम डालोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा बट ये वाली क्वांटिटी नीचे से नेगेटिव मिल जाएगी. तो ये आया डोमेन. अब इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपका फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है वो जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मतलब आप x इक्वल टू 0 डाल के देखिए, x इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू कितनी ले लेगा, √2. फिर x इक्वल टू 2 डाल के देखोगे तो ये 0 ले लेगा. बीच में भी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जहाँ पे आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने एक जनरल तरीका देखा, इसका डोमेन कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया डोमेन. अब हम लोग इसका रेंज कैलकुलेट करके के लिए जो पहला वाला मेथड है वो अप्लाई करते हैं. पहला वाला मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लो. तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखने जाओगे इट विल बिकम y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स. सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स. एक्स को इधर लेके आ जाओ, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1. ऐसा कुछ है. ठीक है, ऐसे ही कुछ है ना. तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1. एक चीज़ तो ये पता चली. दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ से, दूसरी रिस्ट्रिक्शन अगर यहाँ से लगाओगे तो दूसरी रिस्ट्रिक्शन आपको यहीं से मिल जा रही है. इट इज़ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स. अगर ये अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना. कोई भी अगर अंडर रूट की क्वांटिटी है तो अंडर रूट में क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो फिर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. तो अंदर वाली चीज़ तो होनी चाहिए. अंडर रूट का भी आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए. तो आपको दो रिस्ट्रिक्शंस मिली. ये पहली रिस्ट्रिक्शन आपको मिली कि y पॉजिटिव होना चाहिए. दूसरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं. यहाँ से मुझे देख के बताओगे कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें y की कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है, बोलो. इसमें y की कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है, कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम लोग y की रख सकते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे y की सारी पॉसिबल वैल्यूज अलाउड हैं. ऑल वैल्यूज ऑफ y विल डू. सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y के लिए x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको मिल रहा है y बिलोंग्स टू r. यहाँ से आपको मिल रहा है y बिलोंग्स टू r. यहाँ से मिल रहा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मुझे बताओ इनमें से कौन सा आपका पॉसिबल रेंज हो सकता है फॉर द गिवन फंक्शन. ये तो डोमेन आपने कैलकुलेट किया था, दिस वाज योर डोमेन. ये तो आपका डोमेन था. ठीक है, ये आपका डोमेन था. इन दोनों में से कंपेयर करके आपको बताना है कि अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयर यू आर गेटिंग y बिलोंग्स टू r. इन दोनों के इंटरसेक्शन से विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच आई शुड चूज. So I think everyone is giving it at the correct answer. Your correct option is what? C. So your C is the correct option because in this C you are having the intersection of greater than or equal to 0 and y belongs to r. तो मैंने तरीका आपको क्या बताया कि अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए कोई क्लियर कट तरीका नहीं है. 4 अलग अलग मेथड्स बताऊंगा. पहला मेथड जो मैंने बताया उसमें मैंने बोला कि y को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x लिख लो. तो देख के आपको पता ही चल जाएगा कि आप लिख सकते हो या नहीं. बाकी डोमेन निकालने में तो आप कंफर्टेबल हैं. तो राइट y कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x and then calculate the range domain of the given function. So once you calculated the domain of this function, ultimately you put the restriction on y. एक बार y पे restriction आ गया, वही तो हमको चाहिए था इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए. Hopefully everyone is getting this point. ठीक है, तो मैंने डोमेन अलग से निकाल के बताया, रेंज की कैलकुलेशन आपको अलग से मैंने बता दी. अब मुझे एक पॉइंट यहाँ पे आप ये बताना, जो आप ये लिख रहे हो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे डोमेन आपका x इक्वल टू 0 से 2 तक की वैल्यूज ले सकते हैं. तो कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यू होगी इस 0 से 2 की रेंज में जहाँ पे ये y इन्फिनिटी को टेंड करेगा. कैन एनीवन टेल मी एनी वैल्यू बिटवीन दिस 0 to 2? कोई वैल्यू ऐसी होगी 0 से 2 के बीच में जहाँ पे ये yx आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. डू यू हैव एनी वैल्यू लाइक दैट? क्वेश्चन में देखो आप क्या बोल रहे हैं, y पॉजिटिव होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो विच मीन्स योर रेंज ऑफ y शुड बिकम 0 to इन्फिनिटी. तो देखो आप यही तो बोल रहे हो कि यार ये मैं वैल्यूज डालता जाऊंगा इसमें, है ना. अब देखो ये वैल्यूज डाल के भी चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखना. आपने डोमेन निकाल लिया था, आप यहीं पे डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे. आप पहले क्या करो, x टेंडिंग टू 0 करो. आपने x टेंडिंग टू 0 किया
क्योंकि देखो x एग्जैक्टली 0 नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट लगा है, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये कहाँ पे टेंड करने लगेगा, इन्फिनिटी। आप इसमें x इक्वल टू एग्जैक्टली 2 पुट करिए, y कहाँ पे टेंड करने लगेगा, 0। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि जब आपका डोमेन 0 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है तो आपका रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर रहा है। समझ आ रही बात सबको? तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे यार, ये तो आपका बेसिक तरीका है ना। क्या ये बेसिक तरीका नहीं है आपका कि अगर आपको डोमेन और रेंज की कैलकुलेशन करनी है तो पहले डोमेन निकाल लो, डोमेन आपने निकाल लिया 0 से 2, अब डोमेन को यहाँ पे पुट करते जाओ, अपने आप जो y की वैल्यूज होंगी वो रेंज हो जाएंगी। तो एक तरीका ये भी पॉसिबल था, डोमेन निकालने के बाद आप पुट करते, आपको दिख जाता कि y यहाँ से आपका अल्टीमेटली 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे टेंडिंग टू नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 आपका एग्जैक्ट है, तो टेंडिंग टू की जगह पे मैं इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, देन यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया सबको कुछ कुछ? देखो रेंज निकालने का एक तरीका मैंने बता दिया, बाकी तरीके अब अगली वाली क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो वन पॉसिबल मेथड इज वेरी बेसिक मेथड, कैलकुलेट द डोमेन, कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। उसी को मैंने आपको समझाया कि यू कैन राइट योर x इन टर्म्स ऑफ y, then if you write your x in terms of y, calculate the domain of the resultant function, again you will get the range of the function, correct? Fine, तो चले एंड करें आज का सेशन। सो टुडे सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रात में 11 बजे मिलना है हमें, 11 बजे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पैनल डिस्कशन एट 11 PM टुडे इटसेल्फ, ठीक है। एंड लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई गिव यू इन द वेरी स्टार्टिंग, दैट योर फाउंडेशन बैच इज स्टार्टिंग वेरी सून। फाउंडेशन बैच का एक अलग से चैनल बन रहा है, एंड योर टारगेट बैच इज स्टार्टिंग विच इज़ 2021। तो ये 15 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। टोटल कितने महीने का होगा ये? दिस कोर्स विल बी ऑफ 5 months। ओके, सो इन द 5 months ऑल द प्रिपरेशन ऑफ योर गेट 2021 विल बी completed। so all the preparation of gate 2021 will be completed in this in all aspects। सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, सारे के सारे टीचर्स वही पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको 5 महीने तैयारी करनी है, 5 महीने का मौका आपको मिल रहा है, दोबारा एक चांस मिल रहा है, तो ये आखिरी मौका है जब आपको अपना हार्ट एंड सोल लगा देना चाहिए। शायद 1 साल आपको इंतजार करने से बेटर यही है कि आप 5 महीने में अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाइए। 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और 15 अगस्त से अगर स्टार्ट हो रहा है और आपने पहले से ही मन बना लिया कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले अपना गोल चूज करिए, दिस इज योर गोल, क्लिक ऑन टू द गेट एंड ESE कैटेगरी, ओके, देन क्लिक ऑन टू द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। Once you click on to the get subscription button, this payment option will be redirected to you, okay। 1 year subscription cost will cost you 25,000, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू 30,000। सब्सक्रिप्शन की फीस कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी बढ़ सकती है सब्सक्रिप्शन की फीस, तो ऐसा मत समझो ये फीस हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली। सिविल सर्विसेज की फीस भी 48,000 से बढ़ के 64,000 हो गई है विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो 68,000 से 64,000 हो गई रातों रात, किसी को पता भी नहीं चला। तो उसके बाद आप मत लीजिए अगर अभी आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड आपको लगाने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है, दूसरा आपको एक फेसबुक डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलता है जहाँ से 24 घंटे के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। आप मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, यू विल बी गेट माय पर्सनल गाइडेंस। आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी होता है, आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। हर चौथी क्लास आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पूरी की पूरी टीम आपके साथ लग के आपको प्रिपरेशन कराएगी। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। उसके अलावा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आप हमारी टीम की भी मदद करते हैं, हमारा भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये इतना बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलता है, इतने ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, इतनी सारी PPTs, इतनी सारी एनालिसिस। तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक टीम काम करती है। सो दैट टीम ऑल्सो गेट्स द सपोर्ट वंस यू यूज़ दिस कूपन कोड, ओके। तो आपको डिस्काउंट के बाद कितना ये मिल जाएगा? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 22,500। ये 30,000 वाला कितने का? 27। मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला? 10%। तो 10% का डिस्काउंट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। बाकी आपके कुछ क्रेडिट्स भी होते हैं, अगर आप रेगुलरली स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो वो क्रेडिट्स भी लगा देना, पर कूपन कोड यही लगाना है। ये कूपन कोड आपको लगाना, और आपके अलावा अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसको भी ये कूपन कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेना है। पेमेंट आप कैसे कर सकते हो? क्रेडिट कार्ड से कर लो, डेबिट कार्ड से कर लो। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास EMI ऑप्शन। जब आप EMI ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखना, ये EMI है आपकी ज़ीरो कॉस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा। तो ये आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो अपना पेमेंट, और चाहो तो ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो डेबिट कार्ड यूज़ कर लो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो। तो आप जब यूज़ करेंगे तो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपको 2 ईयर की तो 36 रुपीज़ पर डे विल कॉस्ट, 1 साल की इट विल कॉस्ट यू अराउंड 60 रुपीज़ पर डे, ठीक है।
तो बहुत ही कम कॉस्टिंग है, बाद में शायद प्राइस बढ़ जाए, वी डू नॉट नो, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू थिंक दैट यू शुड गिव योर लास्ट चांस, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। डेट याद कर लो 15 अगस्त, ये आखिरी दिन है। इसके बाद आप नहीं देखोगे हमारी तरफ से कोई सेशन लास्ट चांस जैसा, क्योंकि वाकई में आपका आखिरी चांस है। फॉर एनी डाउट immediately call on this number. Okay, so they will guide you, or you can also message me on any of my social media handles. तो आप मुझे अनअकैडमी के चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँ आप मुझे वहाँ पे इमीडिएटली मैसेज करके पूछ सकते हो। बट बेटर ऑप्शन विल ऑलवेज बी दैट यू शुड ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर, करेक्ट। चलो फिर आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। So anyone is having any doubt, they can call on this number.